All right. So today we are going to do the last topic from the first chapter, that is uniform circular motion. Now, there are three parts or three words in this name. Motion we have already seen, and now we understand what it is. So let's now focus on the second bit, that is circular motion. So put very simply, if a body or when a body moves in a circle, it is called सर्कुलर मोशन. एकदम सिंपल, राइट. अगर कोई बॉडी सर्कल में चल रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन, राइट. सो लेट्स से you have a ground like this or circular track like this, and you are moving on this track, right? You are moving on this track, let's say here. Then what you are doing is circular motion, right? I'm hoping that you are assuming that it's a perfect circle. So when you are doing that, what you are doing or what you will be doing is a example of circular motion. Now let us break this circular motion to understand चल क्या रहा है. जैसे मान लो, अगर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करूं, इफ आई एम मूविंग इन से अ शेप लाइक अ स्क्वायर, राइट. तो मैं जब मान लो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी सी डी, लेट्स say start from point A. So when I'm moving from A to B, I'm moving in a straight line. Then from B to C, I'm moving in a straight line. C to D, I'm moving in a straight line. D to A, I'm moving in a straight line. But in between, like in this case, at points B, at point C, and at point D, I turned, right? I changed my direction, right? 3 बार मैंने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज. Now if you increase the number of sides, जैसे मान लो मैं अगर एक हेक्सागन ले लूं, तो you can build the same story, and now I would have made 6 turns. 6 बार मैं मुड़ा होगा. ऐसे ही जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते चलोगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते चलेंगे. बट व्हाट यू शुड आल्सो ऑब्जर्व इज, जैसे जैसे मैं ये नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे ये फिगर सर्कल की तरह दिखना शुरू हो रहा है, राइट. विच मीन्स जब मैं एक्चुअली सर्कल बना लूं, then I can say that when I am walking or when I am doing that motion, I am continuously turning. यहाँ पे जैसे 4 बार मुड़ा, 3 बार मुड़ा, यहाँ पे 6 बार मुड़ा, यहाँ पे 10 बार मुड़ा, यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ. सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड अपेरेंट कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा टाइप का मोशन है जहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ. तो इन दिस मोशन I'll add, in this motion the direction changes continuously. ठीक है. Now here is the important bit. हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और एक होता है इसका डायरेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ if any one of them changes, then we say there is a change in velocity, right? If magnitude changes, that implies velocity has changed. If only direction changes, then also we will say that velocity has changed. And if both change, then also we will say velocity has changed.
ठीक है, तो अब सोचो कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसका स्पीड कुछ भी रहे, राइट, स्पीड या तो कांस्टेंट रहे या फिर चेंज हो रहा हो, बट व्हाट कैन वी से अबाउट डायरेक्शन, दैट द डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, राइट. So since direction is always changing, since we have already written direction is always changing, continuously changing, that means that the velocity of the object will also be continuously changing, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि in circular motion the velocity of an object of the particle, of the object or particle performing the circular motion also changes continuously. ठीक है, in circular motion the velocity of the object changes continuously irrespective of whether the speed is constant or not, irrespective of whether the speed is constant or not. Speed constant रहे चाहे नहीं रहे, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और स्पीड चेंज होने का मतलब है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. तो वो हो या नहीं हो, सर्कुलर मोशन विल ऑलवेज बी अ केस जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है. अच्छा, अब सोचो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी चीज का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम उसके एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं. वी नो we know that rate of change of velocity is acceleration, and since velocity is always changing in circular motion, therefore circular motion is always an accelerated motion. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है और हमें पता है कि वेलोसिटी के चेंज का रेट ऑफ चेंज को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन. अभी तक हम यहां तक समझ चुके हैं. सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, फिर हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है इसका मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब हम बोलेंगे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, राइट. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्पीड, हमें अगर कभी भी पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, वी विल ऑलवेज से दैट इट इज नॉन एक्सेलरेटेड, सॉरी, इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, हमेशा एक्सेलरेशन होगा. ठीक. नाउ लेट्स कम टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये क्या चीज? So uniform circular motion is a special case of circular motion. It's a special case of circular motion where speed of the particle doing circular motion is constant
speed of the particle doing circular motion is constant. अब इस बात को समझो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. लेट्स फर्स्ट क्रिएट दैट सिनेरियो एंड देन अंडरस्टैंड इट. मान लो तुम्हारे पास एक कार है या बाइक है, तुम बाइक में बैठे हो. सब लोग ध्यान से सुनो स्टोरी. देयर इज अ कार और अ बाइक दैट यू हैव एंड देयर इज अ स्पीडोमीटर. उस कार में या उस बाइक में एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है और तुम ये जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल में उस बाइक को चला रहे हो. So here is your car and you are driving your car say in this direction. Now you are ensuring कि जब कार चल रहा है इस सर्कल में तो उसका स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखा रहा है इज ऑलवेज 45 किलोमीटर पर आवर. लेट्स से राइट, तुमने एक्सेलरेशन ब्रेक में जो लगाना है लगा के तुम इंश्योर कर रहे हो कि जब तुम घूम रहे हो इस सर्कल में पूरे ड्यूरेशन में, जब तक तुम ये सर्कुलर मोशन कर रहे हो तब तक तुम्हारा स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जब ऐसा करोगे कि स्पीड कांस्टेंट रहे तो तुम जो मोशन करोगे उस मोशन का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है. सर्कुलर क्यों? क्योंकि तुम सर्कल में घूम रहे हो. मोशन क्यों? क्योंकि तुम घूम रहे हो, चल रहे हो. तो यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, सर्कुलर का मतलब सर्कल में घूम रहे हो, मोशन का मतलब मोशन कर रहे हो. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज एंड द कंफ्यूजन जनरली ऑफ द स्टूडेंट इज कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है. राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है. तो फिर हम वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं और हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट एंड सी इफ यू कैन गेट टू एन आंसर. बात को फिर से समझना, मैं बोल रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा. Here is what you should understand. Velocity has two components. One is magnitude, जिसको हम जनरली स्पीड से भी डिनोट करते हैं. अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड. एंड वन इज डायरेक्शन. इन दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हो रहा हो, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, अभी भी लिखा ये भी हमने, राइट. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, इसमें से कुछ भी चेंज हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ, देन वी विल से दैट द वेलोसिटी हैज चेंज्ड. इस केस में जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्लियरली इवन दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट but the direction is continuously changing, and since the direction is continuously changing, therefore the velocity is continuously changing. And if velocity is changing, then we know del v is not equal to 0. वेलोसिटी चेंज का मतलब है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है. तो सर्कुलर मोशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, ऑलवेज. ठीक. यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन इज जस्ट अ स्पेशल केस जहां पे स्पीड कांस्टेंट. अब याद रखना इस बात को कि हमने जब पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी से. हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कब होता था?
जब स्पीड कांस्टेंट होता था या इनफैक्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होता था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता था वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली, बट ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता था, राइट? दिस वाज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता था, यूनिफॉर्मली चेंज होता था, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हुआ करता था। बट हमने जो पढ़ा था वो उसी कंटेक्स्ट में पढ़ा था कि तब भी ऑब्जेक्ट सीधा लाइन में ही चल रहा था, राइट? इसी में हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। Now we are studying a new topic which is uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड इज कांस्टेंट, बट क्योंकि सर्कुलर मोशन है इसीलिए डायरेक्शन इज चेंजिंग। इसीलिए डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज continuously changing, and this implies that velocity is continuously changing, and this implies that acceleration is not equal to zero, and therefore it is a case of accelerated motion. तो यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन जीरो ऐसा नहीं है। सर्कुलर मोशन के केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब एक्सेलरेशन है, ठीक है, बट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। नाउ देयर कुड बी another type of motion which can be called non-uniform circular motion, non-uniform circular motion। इसका मतलब सिर्फ ये हो जाएगा, ये ऐसा सर्कुलर मोशन होगा जहां पे स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड इज आल्सो चेंजिंग, दैट इज द ओनली चेंज। तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंजेस इन अ सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन विल ऑलवेज चेंज। अगर उसके साथ साथ स्पीड भी चेंज हो रहा है मान लो तुम उसी सर्कल में घूम रहे हो, उसी कार में घूम रहे हो, राइट? बट यहाँ पे तुम्हारा स्पीड था 45 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। So if your speed is also continuously changing, then we will say that it is a case of non-uniform circular motion. Some examples of uniform circular motion. ठीक है, although uniform circular motion is an ideal situation, ideal case होता है, real life में कोई uniform circular motion होता नहीं है, but some motions are very close to uniform circular motion, जैसे अर्थ मूविंग अराउंड सन, ऑल्दो ये सिर्फ समझाने के लिए, इन रियलिटी द मोशन इज नाइदर सर्कुलर नॉर यूनिफॉर्म। याद रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए, रियलिटी में अर्थ ना तो सन के अराउंड सर्कल में घूमता है और ना ही यूनिफॉर्मली घूमता है, यानी कि ना तो स्पीड कांस्टेंट है और ना तो सर्कल में घूम रहा है। जस्ट एग्जांपल के लिए, समझाने के लिए ये बात है। इसी तरह से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, हम जो सैटेलाइट्स छोड़ते हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ये भी एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। अगेन इफ यू गो वेरी टेक्निकली, दीज आर आल्सो नाइदर सर्कुलर नॉर यूनिफॉर्म। जैसे मैंने बोला आइडियल केस है, कभी होता नहीं, ठीक है। देन यू कैन से मून गोइंग अराउंड सन, ये सारे उसी तरह के एग्जांपल है। मून अराउंड सन, सॉरी मून अराउंड अर्थ। देन if you drive say a car at constant speed around a circle, then that will become a example of uniform circular motion and so on. Okay. Another very interesting example is the tip of the seconds hand or minutes hand or hour hand of a clock
घड़ी जो होता है, राइट, मान लो ये घड़ी है, इस घड़ी का जो सेकंड्स क्लॉक, सेकंड्स हैंड है, राइट, मान लो ये सेकंड्स हैंड, तो इसका जो टिप है, ये जो टिप है, ये टिप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, राइट। इफ यू हैव अ क्लॉक देन दिस विल टिपिकली गो लाइक दिस, सेकंड का कांटा थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो द टिप ऑफ द हैंड इज गोइंग टू डू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलरली टिप ऑफ द मिनट्स हैंड, मान लो ये मिनट्स हैंड है ऐसा, लेट्स से दिस इज द मिनट्स हैंड, तो इसका जो टिप है ये भी एक सर्कुलर मोशन करेगा, इसका रेडियस अलग हो जाएगा। देन देयर इज एन आवर्स हैंड, मान लो ये एक तुम्हारा क्लॉक का आवर हैंड है, उसका भी जो टिप है, दैट टिप इज आल्सो गोइंग टू डू सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है, उसका जो टिप है वो गोल गोल घूम रहा है, कांटा गोल गोल नहीं घूम रहा है, कांटा तो चल रहा है ऐसा, राइट। सो ये ऐसा है फिर ऐसा है, बट अगर उसका टिप को अगर फॉलो करो तो टिप इज डूइंग सर्कुलर मोशन, राइट, एंड इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्योंकि कंसिस्टेंट या कांस्टेंट स्पीड से चलता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेटर एग्जांपल जहां पे एक्चुअली कांस्टेंट स्पीड से चलता है। ठीक है, चलो। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट the speed of an object, speed of a particle or speed of a body doing uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे निकाले? मान लो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे तो उसका स्पीड कैसे निकाले? सुना दें, let the particle be traveling with constant speed v, let the radius of the circle be r, and let the time taken time taken by the object to make one complete circle be t. इसको हम लोग टाइम पीरियड भी कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन, time period is the time taken by any object to go once around a circle. ठीक है, तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक है v जो कि उसका स्पीड है, एक है r विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और एक है t विच इज द टाइम पीरियड ऑफ मोशन। इन तीनों को समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला बिठाया जा सकता है। मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट है सर्कल में घूम रहा है, लेट से उसका स्पीडोमीटर दिखा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे एक कार चल रहा है, इसका स्पीडोमीटर दिखा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और पूरे टाइम 10 मीटर पर सेकंड ही दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो स्पीड है v है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ये है v का मतलब, राइट। अगर मान लो यहाँ से सेंटर की दूरी है से 5 मीटर, देन वी विल से दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर। सिमिलरली अगर मान लो एक और कोई केस है जहाँ पे इसको यहाँ से शुरू करता है और चल के यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, जाता 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 है, वापस यहाँ पहुंचता है, और इसको मान लो 20 सेकंड लगता है, राइट। जहां से चला वहीं वापस पहुंचने में उसको 20 सेकंड लगा, तो हम बोलेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज 20 सेकंड्स। आई होप एवरीबडी नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वी, आर एंड टी। ठीक है, so now let's see how they are related, how they can be related. सोचो अगर एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल पे चल रहा है जिसका रेडियस r है, यहां से शुरू करता है और एक बार पूरा घूम के वापस यहीं पे आ जाता है, तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा
ये कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2 पाई आर, है ना जी। अगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, देन इन वन कंप्लीट सर्कल द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2 पाई आर। और टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन इज इक्वल टू टी सेकेंड्स, लेट्स से मीटर में। देयरफॉर स्पीड और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और स्पीड को हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे v। टोटल डिस्टेंस हमारा निकला 2 पाई आर और टाइम 30। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। एक सवाल लिखो, समझ में आ जाएगा। A cyclist goes around a circle or circular track. A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. If the radius of circular track is 105 meters, then calculate his speed. Consider he is performing uniform circular motion. He is performing uniform circular motion. Solve करो। सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस है 105 मीटर। So radius r, so radius of track r is equal to 105 मीटर। और समय लग रहा है 2 मिनट। तो टाइम पीरियड t is equal to 2 minutes. Now I want it in SI unit, तो मैं लिख दूंगा इसको 120 seconds। अब मैं लगा लूंगा स्पीड का फॉर्मूला। therefore speed is equal to total distance by total time, which is equal to total distance हो जाएगा 2 पाई r divided by time हो जाएगा t। This is 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 105 divided by 120। तो 7 goes 1 5 times और 15 चला जाएगा 90, 6 2 8, 8 बार, 2 चला जाएगा 4 बार, 2 चला जाएगा 2 बार, तो 11/2 यानी कि 5.5 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज स्पीड। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो स्कूटर पे होता, साइकिल पे होता, तो उसका स्पीडोमीटर जो है वो 5.5 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा होगा। देखो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज जो होता है वो ड्यू टू डायरेक्शन का चेंज। So if you look at your text book stops here, बट हम लोग थोड़ा सा आगे का काम कर लें क्योंकि अगले चैप्टर में फिर से कुछ आएगा जो इससे ही रिलेटेड होगा। नाउ अगर हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है सर्कुलर मोशन,
तो हम लोग उस सर्कुलर मोशन के एक्सेलेरेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, सुना ध्यान से। In uniform circular motion, direction always changes. लोग देख चुके हैं। Therefore, this implies that velocity always changes. This implies that there is acceleration. ये जो acceleration होता है, इसके कुछ properties हैं। Property number 1, the acceleration is always directed towards the center. The acceleration is always directed towards the center. यानी कि मान लो अगर ये फिर से सर्कल पे चले जाता है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये वो कार है या ट्रक है या बस है या स्कूटर है, जो भी। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन, मान लो ये स्कूटर ऐसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और किसी भी पॉइंट पे हमें पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किस तरफ है, तो हमारा आंसर है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि इस डायरेक्शन। मान लो थोड़ी देर के बाद ये जो भी व्हीकल है वो यहाँ पहुंच गया, अब मुझे पूछा जाए कि अभी इसका एक्सेलरेशन किधर है, तो मेरा आंसर होगा अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मुझे पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, अब इसका डायरेक्शन किधर है, मेरा आंसर होगा अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर। So wherever it is, it doesn't matter. The acceleration is always towards the center. For this reason, this acceleration is known as centripetal acceleration. Centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, यस, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड of this acceleration is given by a centripetal equal to v square by r, where v is the speed of the body and r is the radius of the circle. तीसरा, the direction of the acceleration, the direction of the acceleration is continuously changing.
राइट। देखो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा सेंटर की तरफ तो है, बट चेंज तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। एक बार डायरेक्शन ऐसा है, फिर डायरेक्शन ऐसा है, फिर डायरेक्शन ऐसा है, राइट। सो ऑल्दो वी आर सेइंग इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, बट द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सीधा नहीं है, एक साइड में नहीं। जैसे हम मान लो एक कार था, हम जब स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ रहे थे, तो एक्सेलरेशन या तो इधर ही होता था या फिर इधर ही होता था, एक ही डायरेक्शन में होता था, राइट। अब ऐसा नहीं है, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, कंटिन्यूअसली इट इज चेंजिंग। ठीक, इतनी सारी बातें ध्यान रखोगे। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स आल्सो क्विकली टच अपॉन द फैक्ट कि किसी भी पॉइंट पे the velocity of the object, लिख लो इसी में कहीं पे वेलोसिटी के बारे में पॉइंट। वेलोसिटी जो है, the direction of velocity is always tangential इसका मतलब क्या हो गया? देखो, मान लो ये कार है, राइट, ये कार है, और मान लो ये ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और मैं तुम्हें पूछा कि बताओ अभी राइट नाउ इस कार का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड तो तुम स्पीडोमीटर में देख के बता दो, राइट। नाउ हाउ डू आई डिसाइड द डायरेक्शन? द आंसर इज द डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल, यानी कि इसका टेंजेंट बना लो। आई होप सबको अब टेंजेंट का मतलब समझ में आता है। अगर किसी भी चीज का टेंजेंट बनाता है, इट इज दैट लाइन विच टचेज इट एट वन पॉइंट। तो मान लो अगर मुझे सर्कल है, इस सर्कल पे यहाँ पे टेंजेंट पूछा गया, टेंजेंट का मतलब है इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन जो कि सिर्फ इसी पॉइंट को टच करे सर्कल के, और किसी पॉइंट को टच ना करे, यानी कैसा। मान लो यहाँ पे टेंजेंट पूछा गया तो टेंजेंट ऐसा हो, अगर यहाँ पे पूछा गया तो टेंजेंट ऐसा हो, अगर यहाँ पे पूछा गया तो टेंजेंट ऐसा हो। तो बोला जा रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा गया, राइट, लेट मी रीड्रॉ दिस। मान लो ये हमारा सर्कल है, लेट्स हमारा कार यहाँ पे, राइट, दिस इज आवर कार, और कार ऐसे घूम रहा है, और हमें पूछा गया कि बताओ इस टाइम पे इस कार का वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट बनाएंगे, राइट। तो वी नो द टेंजेंट इज लाइक दिस। अब ये दो डायरेक्शन बता रहा है, या तो डायरेक्शन ऐसा हो सकता है या फिर डायरेक्शन ऐसा हो सकता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि कार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इट इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी विजिबल दैट द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, राइट। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार एट दिस पॉइंट। सिमिलरली अगर मान लो मैं कार चल के यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे आ गया, अब मैं पूछूं बताओ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए डायरेक्शन स्टिल टेंजेंशियल, अभी ये ऐसा हो। अगर मैं पूछूं कि बताओ अगर अब चलते चलते यहाँ पे आ चुके तो डायरेक्शन कैसा होगा, तो आंसर इज स्टिल दैट इट इज टेंजेंशियल, और इस बार वेलोसिटी ऐसा होगा। अगर मैं पूछूं चलते चलते वो यहाँ पे आ गया, बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज स्टिल टेंजेंशियल, डायरेक्शन। Okay, so this is the direction of V here. This is the direction of V here. So you can see V is continuously changing. Direction of V is continuously, although speed constant है. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन हमेशा चेंज है। इसी के साथ साथ मैं अगर एक्सेलरेशन का भी बना दूं, तो यू कैन सी कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर। Now it is very very clear from this diagram that when an object is doing, सुना ध्यान से, when an object is performing uniform circular motion, then at any point velocity and acceleration are perpendicular to each other. इनफैक्ट अगर किसी भी चीज को घुमाना है सर्कल में, then what you need to do is you have to provide an acceleration which is perpendicular to the velocity, तभी वो circular motion करता है।
So when an object is performing uniform circular motion, then at any point the velocity and acceleration are perpendicular to each other. ठीक है, इस वेलोसिटी का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर इसको छोड़ दिया जाता है यहाँ पे, तो ये इधर चला जाता। इस बात को समझना। इधर देखो एक मिनट, व्हाट डज इट मीन टू से कि वेलोसिटी ऐसा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसा है, इसका मतलब है कि अगर मैं किसी तरह से ये फोर्स हटा लूं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा चलने लगेगा। देख लो देख लो देख लो देख लो, लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सुना ध्यान, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका जो स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं समहाउ इस एक्सेलरेशन को खत्म कर दूं तो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमना बंद कर देगा और ऑब्जेक्ट सीधा निकल जाएगा, क्योंकि अब उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा निकल जाएगा, ऐसा चला जाए। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता तो उसका वेलोसिटी जो है ऐसा होता, उसका एक्सेलरेशन जो है वो ऐसा होता, और अगर मैंने किसी तरह से इसका एक्सेलरेशन को कट कर दिया होता, इसका एक्सेलरेशन को खत्म कर दिया होता, तो ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाता, सीधे लाइन में ऐसा चला जाता। Now there is a very simple experiment that you can do to see this happening. एक रस्सी ले लो, ठीक है, एक रस्सी ले लो, एक धागा ले लो, और उस धागे के एंड में एक पत्थर बांध लो, ठीक है, और इस धागे को घुमाना शुरू करो अपने सर के ऊपर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। आई एम सेइंग whirl it around, whirl it over your head. अपने सर के ऊपर ऐसा हाथ से घुमाना शुरू करो। तुम जब घुमा रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा घूमना शुरू करेगा, राइट, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से घूमना शुरू करेगा। You can do it downstairs and ask somebody from above to video record you, then it will become very clear. At any point of time इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड या वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन होगा ऐसा। एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि तुम जो धागा पकड़े हो उसको तुम फोर्स लगा रहे हो, उसको तुम अपनी तरफ खींच रहे हो, तभी वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा हो। जब ये घूमने लगा है अच्छी तरह से, तब इस धागे को छोड़ दो। जैसे तुम धागे को छोड़ोगे तो ये जो एक्सेलरेशन था, ये जो फोर्स तुम लगा रहे थे, जो एक्सेलरेशन इसके कारण बन रहा था, ये खत्म हो जाता है। सो व्हाट यू विल सी इज कि जिस पॉइंट पे तुमने पत्थर को छोड़ा उसी पॉइंट से वो ऐसा सीधा निकल जाए। अगर वो पत्थर यहाँ पे था, मान लो लेट्स से वो पत्थर यहाँ पे था, तो उसका वेलोसिटी ऐसा रहा होगा, उसका एक्सेलरेशन ऐसा रहा होगा। जैसे ही तुम इस धागे को छोड़ दोगे या धागे को कट कर दोगे तो ये एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा निकल। ठीक है, so I believe that is more or less that you need to know about uniform circular motion. If anybody has any question, you can ask now.